morning, students. Today we should start industrial preparation of ammonia. That is Haber's process. It is industrial process. In large scale, ammonia is obtained by Haber's process, where nitrogen and hydrogen gases are treated by one another in the presence of Fe catalyst and molybdenum as catalytic promoter. Molybdenum act as a catalytic promoter. And iron act as a catalyst. And forming 2 NH3, that is forming ammonia. And thermal energy exits out. It expresses that formation of ammonia by Haber's process, thermal energy releases after completion the reaction. So, to obtain large scale of ammonia, it is necessary that we should provide low temperature. Accordingly, chart Elias principle for exothermic reaction to obtain maximum yield, yield, yield माने उत्पाद, yield का मतलब उत्पाद होता है. Low temperature is required, and for endothermic reaction, high temperature is required. It is exothermic reaction, so low temperature is required to obtain maximum amount of ammonia. Any problem? That is low temperature. First point. Second, high pressure is required. Why high pressure is required? 3 and 1. 4 mole. 4 mole of reactants when taking place in a chemical reaction. 2 mole of reactant is obtained. यहाँ 4 मॉलिक्यूल है, 4 मोल, और रिएक्शन पूरी कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल. When the number of moles of product are lesser than number of moles of reactant, high pressure is required. और इसके अपोजिट कहीं होता है कि रिएक्टेंट की संख्या कम थी और प्रोडक्ट की संख्या के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो लो प्रेशर की आवश्यकता होती है टू अटेन मैक्सिमम यील्ड. प्रॉब्लम. और थर्ड पॉइंट ये है, जो अंडरस्टूड है कि आपको अगर अधिक अमोनिया प्राप्त करना है तो आपको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों लेना पड़ेगा. हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2 गैस. ठीक. फोर्थ, ये फोर्थ क्या है कि आपका जो कैटलिस्ट है ये आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, जल्दी जल्दी काम कर लेता है. तो आपको अधिक उत्पाद चाहिए टू अटेन मैक्सिमम यील्ड. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज आल्सो नेसेसरी.
presence of suitable catalyst. These are the conditions by which maximum yield of ammonia be obtained by reaction of nitrogen and hydrogen. When nitrogen and hydrogen both are compressed, both comes in the contact of one another, they both the gases are when compressed in catalytic chamber. This is the catalytic chamber. Catalytic chamber where catalysts are filled, iron and molybdenum. When nitrogen and hydrogen gases comes in the contact of catalyst, forming ammonia gas, but all the nitrogen and hydrogen do not change into ammonia. Some of the molecules remains as such. Such nitrogen and hydrogen which is unreactive, that and ammonia formed which is nitrogen and hydrogen whom are reactive. The mixture of nitrogen, hydrogen and ammonia gases comes in the condensation tower where ammonia gas obtained. Ammonia is miscible in water. अमोनिया पानी में मिलनशील है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी में नाइट्रोजन ये अमोनिया गैस घुल जाती है और ये लिक्विड अमोनिया के रूप में, लिक्विड अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मिल जाती है। और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं वो गैसों को वो गैसें अपने आप स्वतः ही देखिए यहाँ से बाहर निकल जाती हैं और वो फिर से पंप में आ जाते हैं। इसको पंप करके हम फिर से उसको कैटालिटिक चेंबर में भेज देते हैं, रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करता है। हम छोटे छोटे चीजों को बड़े बड़े उदाहरण से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। बच्चे जो देखे होंगे कई बार के धान कूटने वाली मशीन होती है तो एक बार पूरा धान डाला जाता है तो उसमें चावल भी आता है और साथ साथ कुछ धान भी आ जाता है। चावल ज़्यादा होता है, धान भी होता है। उसको फिर से उठा करके डाल देते हैं तो फिर वो धान जो बचा हुआ था वो भी चावल में बदल जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें बची रह जाती हैं वो फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो हेबर का जो प्रोसेस है ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाई हेबर्स प्रोसेस, बाई हेबर्स प्रोसेस, ये फिगर है। इस प्रकार से हेबर के प्रोसेस से हम अमोनिया गैस का निर्माण कर लेते हैं। लार्ज स्केल में अमोनिया का निर्माण इसी से करते हैं। आगे क्वेश्चन भी टेक्स्ट में मिलेगा आपको कि व्हिच कंडीशन इज सुटेबल टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, मैक्सिमम यील्ड एज अमोनिया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2 and presence of suitable catalyst such as Fe, and at the presence of Fe Al2O3 is also used। इसलिए सुटेबल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं हम। कंफ्यूजन? अब अगली बात बताते हैं आपको प्रॉपर्टीज में कि अमोनिया एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन होता है। In the solid state and liquid state, it is associated through hydrogen bond, as in the case of water, and that accounts for the higher melt MP and BP. Ammonia
में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्षमता होती है, भी पानी में सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमने आपको पहले से एक्सप्लेन किया है। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, इसी कारण से इसका एमपी और बीपी वो कंपैरेटिवली हाई होता है और ये पानी में आसानी से घुलनशील होता है। अमोनिया गैस को पानी में जब हम घोलते हैं तो हाईली सॉल्युबल होने की वजह से एक वीक बेस NH4OH का निर्माण करता है। हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं। अमोनिया देखिए, ये प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि अमोनिया को जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, पानी में घोलते हैं, तो चाहे H2O लिखिए चाहे OH लिख दीजिए, समझने के लिए आसान रहेगा। तो ये NH4OH का निर्माण करता है। और एक बात और ध्यान रखिए, हम जहाँ भी केमिकल रिएक्शन में अमोनिया इस्तेमाल करते हैं वहाँ अमोनिया गैस नहीं, बल्कि अमोनिया का ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इस प्रकार से आपने हेबर्स प्रोसेस की फिगर समझ लिया, रिएक्शन समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले पॉइंट पे आ जाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आप किसी भी, ये बेसिक नेचर का है, आप समझ गए, तो ये जैसे जिंक सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो जिंक सल्फेट वो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, तो रिएक्शन ये जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट का साल्ट मिलता है। अमोनियम सल्फेट देखिए 2 NH4 और ये SO4 एक साथ हो जाते हैं, और ये 2 OH और एक ZN। जिंक हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम सल्फेट, ये साल्ट मिल जाता है। अमोनियम सल्फेट पानी में मिलनशील है और जिंक हाइड्रोक्साइड जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, ammonia molecule makes a leaf space, it donates the electron pair and forms linkage with metals. Formation of such complex compounds find application in the detection of metal ions, such as when copper sulfate is treated with ammonia, CuSO4 is treated with ammonium hydroxide. ये कॉपर सल्फेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं, तो CuNH3 का होल 4 CS, देखिए ये कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, Cu और NH3 का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। ये 3H यहाँ पर 4H जो बचा हुआ है, 4H और 4OH, ये 4H2O बना लिया। CuNH3 का होल, पानी बाहर निकल जाता है। और सल्फर, ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट के आयन भी मिलते हैं आपको, उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये 2+ के फॉर्म में मिलता है, यानी कि ये जो सल्फेट है इसी में आगे यहाँ पर इस साल्ट के फॉर्म में SO4 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलता है, और प्लस 4H2O यही कहलाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये SO4 को हटा दीजिए तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पे 2 नेगेटिव चार्ज बच जाता है। यानी आप यहाँ पर CuSO4 ना लिख करके केवल Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये SO4 जो है वो सब चार्ज को ले लेता है ना, नेगेटिव SO4 माइनस होता है, तो चाहे तो ये CuSO4 लिखें, CuCl2 लिखें, तो जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखना पड़ेगा। और SO4 को अगर आप नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड कर दीजिए कि नेगेटिव हम जोड़ लेंगे अपने आप, तो
तो SO4 यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये Cu++ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही दोनों पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देंगे ऐसे। इसी प्रकार से Ag लिख लीजिए, Ag++, तो यहाँ पर Ag हो जाएगा। क्यूप्रा एमीन साल्ट, अर्जेंटो एमीन साल्ट एक्सेट्रा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? यूज बता दें, अमोनिया इज यूज्ड एज प्रोड्यूस्ड वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अमोनिया का आपने बताया कि अमोनिया के द्वारा फिर यूरिया बनता है। यूरिया का निर्माण, आप यूरिया का उपयोग खेतों में अपने फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। सच एज अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। Manufacture of some inorganic nitrogen compound, the most important one being nitric acid. Liquid ammonia is also used as a refrigerant. 57 चीजें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। Why does ammonia act as a Lewis base? तो सभी बच्चे जानते हैं कि Lewis base किस तरह कहते हैं, जिसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे लेविस बेस कहते हैं। ये डार्क स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, डार्क स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें बचा, एक या एक से ज्यादा एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें बचा रह जाता है, इस तरीके से ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाता है, उसे लेविस बेस कहते हैं। और जो इसे गेन करने की एबिलिटी रखता है वो उसको लेविस एसिड कहते हैं। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। ये भी आपको पहले से लिखा हुआ था। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2 एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद ए सॉल्यूशन ऑफ Cu2+? तो ये रिएक्शन अभी आपके सामने लिखा हुआ है। Cu2+ मतलब क्यूप्रिक आयन के साथ अमोनियम हाइड्रॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्यूप्रा अमोनियम साल्ट, क्यूप्रामीन कहते हैं, आपको मिलता है। तो इस प्रकार से टॉपिक आपका ओवर हो गया और अगले टॉपिक पर हम अगले दिन बात करेंगे। तो आज हम कहेंगे कि आज के पढ़ाई हुए टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको पूछें, डिस्कशन करें। नंबर आपके पास लिखा हुआ है, इस पर आप कंसल्ट करके कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।